students, this is Mahesh Nagar and you are watching English and Commerce Pathshala. So this is the third day of your revision class, and in this video I am going to explain you the summary of your third lesson. The lesson name is Goodbye Party to Miss Puspa T.S., which is written by Nissim Iskil, a post-independence poet. He was very famous as a Indian English writer. Okay students, so about this poem you have to remember two most important things. The first one is that the poem is surrounded to a lady. ठीक है, एक लेडी के बारे में ही सारी चीज़ें ये बात करती है. एंड द सेकंड थिंग इज़ द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन द पोएम. जो कि पोएट ने जो लैंग्वेज यूज़ करी है वो, ये दो चीज़ें आपको याद रखना है. दैट्स इट, आपके सारे काम इसमें हो जाएंगे एंड यू नीड नॉट टू remember a lot of things about the poem. At very first, let me tell you about the poem. In this poem, the speaker is belong to the English non-English speaker community. एक non-English speaking community से belong करता है. He was just an Indian. वो एक Indian रहता है और बहुत ज़्यादा English जानता नहीं है. So that this poem includes some humorous effect. कुछ humorous effect भी इस poem में है. And the most important feature which you should remember, that is Babu English. The poem has a feature of Babu English. And what is Babu English? Later I will tell you. But at first, let me tell you about the poem. The speaker starts delivering his speech in front of his friends, because they are afraid Miss Puspa is going to improve her prospectus. अपना prospectus यानी कि फ्यूचर को के लिए जो है वो फॉरेन कंट्री जो जा रही है उसको बोन वोएग जो है यानी कि हैप्पी जर्नी विश करने के लिए वो वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. दे आर जस्ट गैदर देयर टू विश हर बोन वोएग और हैप्पी जर्नी फॉर हर फ्यूचर. The speaker starts delivering his speech in the manner that, dear friends, we are here to wish a bon voyage to our sweet friend or good friend, Miss Puspa T.S. The speaker reveals some qualities of the lady. जो lady है उसकी कुछ qualities वो बताता है, ठीक है. And the qualities are that she is smiling every time without any reason. She has a inner sweetness. उसके अंदर sweetness यानी कि अंदर से वो मीठा उसका behavior है, अच्छा behavior है. Not external, बाहर का नहीं, ठीक है. बाहर का जो दिखता है वो तो है ही, बट उसके अलावा internally भी वो जो है वो काफ़ी खुश रहती है. The speaker gave a reason that she was smiling not because to show the others, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बट शी फेल्ट, वो महसूस करती थी, इसलिए वो सारी चीज़ें जो है वो स्माइलिंग करती है. फर्दर ही टेल्स दैट शी डिनाइज टू नोबडी, किसी को भी वो मना नहीं करती है. वॉट एवर इज आस्किंग टू हर, जो भी उससे जो है वो पूछा जा रहा था उसके लिए वो कभी मना नहीं करती थी. she was actually ready to do everything, whatever work assigned to her. ठीक है, जो भी काम उसको असाइन किया जाता था वो उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती थी. Therefore she was famous among men and women both. ठीक है, दोनों ही के बीच में जो है वो फेमस थी, वो पॉपुलर थी. She also the speaker also tells about the family background, that she was belonged to a renowned family, और her father was a famous advocate. उसके फादर जो है वो फेमस एडवोकेट भी थे. बट शी हैज़ नथिंग, नो नेगेटिव एटीट्यूड और नो ईगो. उसका कोई ईगो नहीं था, कोई नेगेटिव एटीट्यूड उसके अंदर बिल्कुल नहीं था. शी वॉज जस्ट अ सिंपल लेडी, वो बिल्कुल एक साधारण सी महिला थी. एंड शी बिहेव लाइक द सेम, उसी की तरह वो व्यवहार भी करती थी. ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट वाई मिस पुष्पा T.S. was popular among the men and women because of her good qualities, her inner sweetness, because of her smiling nature, or because of her good nature. She was famous among men and women also. Okay, the
party was organized to wish born boy to Miss Puspa TS. ठीक है, मिस पुष्पा TS को एक हैप्पी जर्नी बोलने के लिए जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज की जाती है. इन द लास्ट इन द मिडिल ऑफ द पोएम द स्पीकर गिव सम ह्यूमरस इफेक्ट, यानी कि कुछ ह्यूमरस इफेक्ट जो है वो कहता है कि actually the advocate belongs to Surat or Balsar like city, and he accept that he didn't remember the name of the city from where his father was. ठीक है, वो उसके फादर कहाँ से थे ये उस चीज़ को उसको याद नहीं रहता है. एंड इन द नेक्स्ट लाइन ही एक्सेप्ट दैट यस ही रिमाइंडेड, उसको याद आ जाता है, यस आई नो दैट ही दैट सिटी नेम वाज सूरत, एंड वंस ही used to stay there with the family member of his uncle's very old friend. उसके अंकल के बहुत पुराने दोस्त थे, उनके साथ वो रुका था. and his wife was cooking so nicely. ठीक है, वो बहुत अच्छे से खाना बनाती थी. actually here he used some wrong sentences, but later we will talk about that. In the last of the poem he asked to other speakers so that they can say some words about Miss Puspa TS, and then he also tells that in the final of the party or in the last of the party Miss Puspa will summing up the party. ठीक है, वो कहता है कि मिस पुष्पा जो है वो समिंग अप करेगी, यानी कि इसको कंप्लीट करेगी पार्टी को. दैट इज द पोएम समरी, ये पोएम की समरी रहती है. The next thing which you have to remember, and this is the important question, कि what are the features of the poem or what are the Babu English feature. ठीक है, बाबू इंग्लिश के फीचर क्या इस पोएम में है. तो let me tell you each and everything with the critical analysis of the poem. That at very first the poem, the speaker belongs to a Indian, the speaker belongs to such a community which is not aware about the grammatical rules and syntax about of the language. जो लैंग्वेज उसका सिंटेक्स, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उसका ग्रामेटिकल रूल्स क्या होते हैं, ऐसी कम्युनिटी को बिल्कुल भी पता नहीं है. द स्पीकर फ्रीली यूज्ड व्हाटएवर कम्स टू हिज टंग, ही जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, वो स्टार्ट कर देता है बोलना. ठीक है, उसको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट फ्रीली जो है उसका यूज़ करता है. द पोएट वेरी केयरफुली एंड वेरी स्किलफुली यूज़ द इंग्लिश और मेक द इंग्लिश इंडियनाइज. ठीक है, उसको इंडियनाइज किया है, भारतीय करने की कोशिश पोएट ने जो है इंग्लिश को बहुत ही स्किलफुली करने की कोशिश की है. बाबू इंग्लिश इज़ दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज और दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड बाय द बायलिंगुअल. ठीक है, दो भाषा जानने वाले व्यक्ति के द्वारा यूज़ की जाती है ऐसी लैंग्वेज को हम जो है बाबू इंग्लिश कहते हैं. द बायलिंगुअल पर्सन डोंट नो द फीचर्स, द क्वालिटीज़ और द ग्रामेटिकल रूल्स और द सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज. जो लैंग्वेज है उसके सिंटेक्स, उसकी ग्रामेटिकल रूल को जो पर्सन है स्पीकर वो नहीं जानता है. ही यूज्ड फ्रीली, ठीक है, टू स्पीक इन द लैंग्वेज. जो लैंग्वेज है उसमें वो फ्रीली बोलने की कोशिश करता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ग्रामर के बिना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए है वो उसको बोलने की कोशिश करता है. सम वर्ड्स और सेंटेंसेस वी कैन पिक अप फ्रॉम द पोएम दैट शोज दैट द पोएट यूज बाबू इंग्लिश विदाउट फॉलोइंग एनी ग्रामेटिकल रूल ऑफ द लैंग्वेज. On the reading of the poem, you can find that the poet uses only continuous tenses, present continuous or past continuous. That is not good for a poem, जो कि poem के लिए सही नहीं रहता है. As in the beginning of the poem, let me tell you some sentences. I have a book. At the beginning, he addressed his friends that friends, our dear sister is departing for foreign in 2 or 3 days. 2-3 दिन में वो जो है वो विदेश जा रही है. दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम. वी आर मीटिंग टुडे, वी आर मीटिंग, हम यहाँ मिल रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम. बट इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजा यूज यू आर ऑल नोइंग, आर नोइंग, आप सब जान रहे हैं. ठीक है, दे ऑलरेडी एक्चुअली नोन अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ द लेडी, वो ऑलरेडी जानते हैं. सो यू ऑल न्यू दैट such sentences should be used here. But what he writes that
You are all knowing. आप सब जान रहे हैं. That is not a correct sentence you can say. Okay, some other things are like Miss Puspa is smiling and smiling. So Miss Puspa smiles and smiles. वो करती है. It must be in present indefinite tense, not in present continuous tense. Okay. बट आगे वो लिखते हैं कि इवन फॉर नो रीज़न, बिना किसी रीज़न के. बट नेक्स्ट सेंटेंस जो है, आप बुक को आई प्रेफर यू बुक कि आप बुक को देखिएगा सो दैट यू कैन राइट योर आंसर वेरी इन वेरी गुड यू नो सेंस. बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, वो महसूस कर रही है. इट मस्ट बी द प्रेजेंट एक्शन. ये जो है वो क्या शो कर रहा है कि प्रेजेंट एक्शन को शो कर रहा है. बट एक्चुअली दैट मस्ट बी इन इंडेफिनिट टेंस. Again, he used Miss Puspa is coming from very high family. Very high family, right? What means high family? It means very reputed family or something like that. Miss Puspa is coming from. He should use Miss Puspa belongs to a very high family or rich family. This kind of sentence or this type of sentence should be used here. Again, her father was a renowned advocate. Here, indefinite articles also missed. ठीक है, indefinite article an जो रहता है वो भी मिस है. जैसे कि Miss Puspa is coming from a high family, a very high family. ठीक है, किसी एक परिवार से बिलोंग करती थी. Was a renowned advocate. उसके फादर जो है renowned advocate, तो a renowned advocate इस तरह से उसको यूज़ करना चाहिए. सो सिंपल. वॉज के साथ भी उन्होंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया है. एज मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ तो स्पोकन में आई एम ऑल्सो बाइलिंगुअल पर्सन. मैं भी हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता हूँ. एंड रेगुलरली ऑन द डेली बेसिस आई एम नॉट यूजिंग इंग्लिश इन my daily life. That's why we are facing some problems at the time of speaking in English language. So some kind of sentences we forget, or some some rules we forget to use at the time of speaking in English. English में बोलते समय हम कुछ rules और regulations भूल जाते हैं, हमें सारी चीज़ें याद नहीं रहती है. That is the quality of Babu English. These features are the features of a language which is not used purely, जो कि purely use नहीं की जाती है. इस तरह से हम English को जब use करेंगे तो that is called Babu English. So students, I hope कि आपको हर चीज़ समझ में आई होगी. अगर आपको हर चीज़ समझ में आई है, मेरा कम्युनिकेशन आपको समझ में आएगा. whatever I am telling you, जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, if you are getting my words, if you are getting my intention, what exactly I want to tell you, मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, ठीक है, तो होप आपकी एग्ज़ाम में ये बेनिफिशियल रहेगा. इफ़ यू फील दैट दिस इज़ ओके, दिस इज़ गुड फॉर यू, सो I request you to recommend this channel, my channel, to your classmates and also your juniors who are just going to qualify class 11th and coming in 12th standard. So next year their English will be different from you. आपकी English से वो अलग होगी, and that is the NCERT English Flamingo. Its name is Flamingo. So I'm going to start delivering lectures on that English. उस इंग्लिश के ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियोस जो है बनाना शुरू करूँगा. सो यू शुड मोटिवेट दैम टू स्टार्ट देयर इंग्लिश एटलीस्ट वंस. क्लासेस जब स्टार्ट होगी तो उनके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है वो पढ़ सकते हैं वो. बट इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा समरी याद हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए क्लासरूम की ज़रूरत नहीं होती. अगर आप ठीक से सुनते हो और पढ़ते हो तो आप वैसे भी कंप्लीट कर सकते हो. तो थोड़ा टाइम जो है वो कवर हो जाएगा, टाइम बच जाएगा. अगर एक लैंग्वेज को आप एक सब्जेक्ट को कवर कर लेते तो रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स आपके बचते हैं. हिंदी भी इसी तरह से आप किसी टीचर की हेल्प से कर सकते हैं, और रिमेनिंग जो आपके मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं थ्रू आउट द ईयर आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट में वापस रिवीजन करके और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं स्टूडेंट्स. Soon I will make videos on how to write essay, good essay कैसे लिखते हैं. ठीक है, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा. तो आप अपने लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है उसमें सारे चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप लॉन्ग आंसर्स भी जो है वो इजीली राइट कर सकते हैं. फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको हर लेसन की समरी जो है ओवरऑल आना चाहिए स्टूडेंट्स.
तो आज के इस वीडियो में आई थिंक इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप बार बार रिपीट करके सुनिए। डेफिनेटली लिसनिंग करने से आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होती है, आपको चीज़ें याद रहती है, क्योंकि ये चीज़ें आप लाइवली सुनते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो आपको बिल्कुल याद रहेगी। दिस इज़ द गुड वे टू लर्न। ठीक है, ये सीखने का सबसे बेहतर तरीका होता है। ठीक है, जैसा मुझे फील हुआ और जैसा एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं, आप इसको ट्राई करिए। डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड बाय लिसनिंग your English lessons. So students, thanks for watching this video.